ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੀ ਸੁਲਤਾਨੀ में ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਐਂਗਰੀਸ਼ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਐਸ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈਗੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਚਿੰਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਧੀਵਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋਪਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਉੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਪਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਲੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨਦੀਪ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਔਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आप सब बहुत ही महान शख्सियतों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुकेश आलम साहब ने बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कोशिश करता कि हम उसे यूं बयान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं जिस तरह बेज़ुबान करते हैं, जिस तरह बेज़ुबान करते हैं, बात करते हैं वो भी नजरों से, बात करते हैं वो भी नजरों से, हम भी आँखों को काम हम भी आँखों को काम करते हैं।
जो शिफा की दुआएं देते थे, जो शिफा की दुआएं देते थे, जो शिफा की दुआएं देते थे, अब दवा की दुकान अब दवा की दुकान करते हैं। रिस्क मिट्टी से खोदने वाले, रिस्क मिट्टी से खोदने वाले, आसमान आसमान करते, आसमान आसमान करते हैं। और शेर लिखे कि दर्द जब हो ही गया है मेहमान, दर्द जब हो ही गया है मेहमान, करो जो मेजबान करो जो मेजबान करते हैं। आखिरी बार तुमको देख लिया, आखिरी बार तुमको देख लिया, आखिरी बार तुमको देख लिया, आज हम आंखें दान करते हैं। हम उसे यूं बयान करते हैं, जिस तरह बेजुबान करते हैं, हम उसे यूं बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत पवन एक्टर भी है, अदाकार भी बहुत अच्छा है, काफी पंजाबी पिक्चरां ने अदाकारी अपने जौहर दिखाए ने। इस तो पहला कि साडे बुलारे बोलन, मेरी गुजारिश है प्रधानगी मंडल नूं कि एक किताब नाल फोटो जरूर करा ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब रेखता तो प्रकाशित हुई है और तुहानूं पता है कि रेखता दा किड्डा वड्डा मुकाम है, उस प्रकाशित होना ही अपने आप विच बहुत वड्डी गल है। मुकेश आलम साहब तां उत्थे काफ़ी बार दर्जनों बार उत्थे पढ़ के भी आए उन्होंने वालों उन्होंने मुशायरे। तो इस बाद मेरी गुजारिश है मुकेश आलम साहब कि वो सानू अपन कुछ गज़लां नाल नवाजणगे ते उस तो बाद असी फिर अपने बुलियारा वल जावांगे। मुकेश आलम साहब। बहुत शुक्रिया सोफन फाउंडेशन ते पंजाब कला परिषद जिन्होंने दोनों ने जगदीप सिद्धू द्वारा ये प्रोग्राम जोड़ा है मुनक्कद किया। मेरी किताब से चर्चा हो रही है अपने घर जो किसी की गल हो रही हो तो होर भी ज़्यादा चंगा लगता। दिल्ली में 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं ऑलरेडी, पर इत्थे जो प्रोग्राम हो रहा वह मैनू सब तो ज़्यादा मान महसूस हो रहा और खुशी महसूस हो रही है। दसवंत जफर साहब बैठे ने, गरेवाल साहब बैठे ने, शाद साहब स्पैशली इस किताब के फंक्शन करके आए ने। मैं थोड़ा डर भी रहा सर किवें कमां, पर सर का मैंने खुद ही फोन आया कहते कि मैं भी तेरी किताब से जो मेरी किताब उत्थे लैने थे सर असीलिया से उदों नहीं आ पाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शादमा का भी बहुत शुक्रिया। कलाम में चुनिंदा कलाम कुछ सुना देना। ख्वाबों की काई पर चलना भारी पड़ा बेध्यानी में,
ख्वाबों की काई पर चलना भारी पड़ा बेध्यानी में, एक जरा सी प्यास की खातिर डूब गए हम पानी में। ख्वाबों की काई पर चलना भारी पड़ा बेध्यानी में, एक जरा सी प्यास की खातिर डूब गए हम पानी में। दुनिया का दिल रखते रखते सब अरमा कुर्बान हुए, दुनिया का दिल रखते रखते सब अरमा कुर्बान हुए। हमने सारी फौज लगा दी पत्थर की निगरानी में। ख्वाबों की काई पर चलना भारी पड़ा बेध्यानी में, एक जरा सी प्यास की खातिर डूब गए हम पानी में। दुनिया का दिल रखते रखते सब अरमा कुर्बान हुए, हमने सारी फौज लगा दी पत्थर की निगरानी में। और अपनी समाज के छोटी छोटी अलग अलग गजला शेर सुना रहा। अपनी समाज के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, समाज मतलब सुनंदी शक्ति सुनना। अपनी समाज के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। अपनी समाज के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। रात और दिन की चौसर पर ऐ अंबर खेल बराबर से, रात और दिन की चौसर पर ऐ अंबर खेल बराबर से। मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। बहुत शुक्रिया। और गुलों की चांद की तारों की बातें कर रहा था, गुलों की चांद की तारों की बातें कर रहा था, बिछड़कर मुझसे गुलजारों की बातें कर रहा था, बिछड़कर मुझसे गुलजारों की बातें कर रहा था। तेरी महफिल में थी एक शम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी महफिल में थी एक शम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो दर्द के मारों की बातें कर रहा था, और वो करके हर किसी मौसम को राजी छोड़ देते हैं, वो करके हर किसी मौसम को राजी छोड़ देते हैं। नए गुल खिल उठे जब अपना माजी छोड़ देते हैं। वो एक नुक्ता जो लफ्जों में बयां होता नहीं आखिर, वो एक नुक्ता जो लफ्जों में बयां होता नहीं आखिर, उसे दीवाने पढ़ लेते हैं काजी छोड़ देते हैं। और तुम्हारे रहते तुम्हारे जैसा ही कोई दूजा तलाश करना, तुम्हारे रहते तुम्हारे जैसा ही कोई दूजा तलाश करना, कि जैसे सागर के पास रहकर कुएं का रास्ता तलाश करना। तुम्हारे रहते तुम्हारे जैसा ही कोई दूजा तलाश करना, कि जैसे सागर के पास रहकर कुएं का रास्ता तलाश करना। खजाना मांगा तो मुर्शिदों ने ये एक नक्शा थमा दिया है, खजाना मांगा तो मुर्शिदों ने ये एक नक्शा थमा दिया है। लिखा है इस पर कि अपने सीने का बायां हिस्सा तलाश करना, लिखा है इस पर कि अपने सीने का बायां हिस्सा तलाश करना। बहुत शुक्रिया। और एक शेर है जिथों मतलब मैं अचानक ही लाइन लाइट आ गया, एक मतलब एक शेर हाजिर करना मैं कितने पढ़िया सी 2016-17 तो उस तो बाद अचानक ही फेसबुक पे बहुत सारा घूम गया थे जिहड़ा मुशायरियां दा दौर मेरा शुरू होया तो कि रेगजारों में समुंदर की कहानी सुनकर, रेगजारों में समुंदर की कहानी सुनकर, प्यास इतनी थी कि हम रो पड़े पानी सुनकर। रेगजारों में समुंदर की कहानी सुनकर, प्यास इतनी थी कि हम रो पड़े पानी सुनकर। आशिकी क्या है जरा शीशों से भी पूछना था, आशिकी क्या है जरा शीशों से भी पूछना था। क्यों चले आए हो पत्थर की जुबानी सुनकर। बहुत शुक्रिया। एक और शेर काफी मकबूल होया और उसकी खासियत मेरे लिए सब तो बड़ा सम्मान जिहड़ा है वो ये है कि इस शेर दा एक टैटू इत्थे गौतम शर्मा बैठा है, मैं किताब नूं दी नज़र भी कीता है क्योंकि इस तो बड़ा सम्मान मैनूं नहीं लगदा साहित्य दे विच किसी नूं जल्दी किते मिलदा। उस शेर का टैटू ने पूरे अपने कच्छ तो लैके लक तक पूरा लंबा टैटू बनवाया है, जिहड़ा कि परमानेंट टैटू है, तो रिमूव नहीं किया जा सकता। कुदरत उसके सामने सजकर बैठ गई,
कुदरत उसके सामने सजकर बैठ गई, तेरी नजर जिसकी भी नजर पर बैठ गई। जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, नेज़े पर एक तितली आकर बैठ गई। बहुत शुक्रिया। और दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। और पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती। पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती। देख ना पाई बीनाई, बीनाई की साइट नजर, देख ना पाई और नाबीना हुंदा ब्लाइंड। अंधा शब्द मैंने बुरा लगता है इस करके मैं नाबीना यूज किया, ब्लाइंड। देख ना पाई बीनाई जो बैठ के साए रंगों के, देख ना पाई बीनाई जो बैठ के साए रंगों के, नाबीना लोगों ने ऐसे ख्वाब सुनाए रंगों के। देख ना पाई बीनाई जो बैठ के साए रंगों के, नाबीना नाबीना लफ्ज़ बार वजन आਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ये सर फेलन फेलन जगह और यूज हो सकता है, अंधे लोगों ने भी हो सकता है यूज। नाबीना लोगों ने ऐसे ख्वाब सुनाए रंगों के, बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आई, बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आई, माली की बेटी को जैसे रिश्ते आए रंगों के। बागीचे में फूल खिले तो उसकी आंखें भर आई, माली की बेटी को जैसे रिश्ते आए रंगों के। और एक शेर मतलब है कि बल्कि अज दे हालात तक हमेशा नहीं मुझे लगता भी ये शेर सार्थक रहेगा कि अब तो सारा आलम ही इन रंगों से शर्मिंदा है, अब तो सारा आलम ही इन रंगों से शर्मिंदा है, मजहब वालों ने कुछ ऐसे फर्क बताए रंगों के। बहुत शुक्रिया। धड़कन है मगर दिल मेरे पहलू में नहीं है, धड़कन है मगर दिल मेरे पहलू में नहीं है, ये मौजिजा है जो किसी जादू में नहीं है। मैंने तो निभाना है ताल्लुक ही ज़मीं से, मैंने तो निभाना है ताल्लुक ही ज़मीं से, खिलना या ना खिलना मेरे काबू में नहीं है, खिलना या ना खिलना मेरे काबू में नहीं है। मलबे भी हैं, तूफान भी, जीवन भी, नमक भी, मलबे भी हैं, तूफान भी, जीवन भी, नमक भी, सागर में भला क्या है जो आंसू में नहीं है। शेर के रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है। और वो असर खाक असर है जो दुआ ढूंढता है, वो असर खाक असर है जो दुआ ढूंढता है, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है, वो असर खाक असर है जो दुआ ढूंढता है, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है। और एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है, एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है। मौत शाही है बाज, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, जान तितली है जो दीवार में दर्द ढूंढती है।
है। चांद तितली है जो दीवार में दर्द ढूंढती है। जिंदगी क्या है जरा गौर से देखो आलम, जिंदगी क्या है जरा गौर से देखो आलम, एक तस्वीर है जो अहले नजर ढूंढती है। मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं, मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं, तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं। कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता। नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं, नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं। ऐ आवारा ख्यालों अश्कबारी में तो रुक जाओ, ऐ आवारा ख्यालों अश्कबारी में तो रुक जाओ, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं। और हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही, हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही। वो रस्मन नाम लेते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं। वो रस्मन नाम लेते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं। बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के। खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ रहा है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਜਿਉਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਮੀਖਕ ਵੀ ਨੇ। तो सब तो पहला मैं गुजारिश करांगा करण कि वो कुछ समा 10 ਤੋਂ 15 मिनट जिन्ना भी समा लाउन मुकेश आलम दी जिहड़ी शायरी है इश्क तेरी सुल्तानी दे विच ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ अपनी गल करनगे। सबसे पहले तो मैं जगदीप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस डाइस से मैं अक्सर अपने शेर, अपने गज़लें पढ़ने के लिए आता रहता हूँ इस डाइस पर, लेकिन किसी की किताब पर बात करना और वो भी मुकेश आलम साहब, तो बहुत बड़ा टास्क उन्होंने मुझे दिया। जब जगदीप साहब की कॉल आई, मुझे कहते हैं कि करण एक बहुत वधिया किताब है, तू 15 मिनट बोल लेगा। और ये बात सुनते ही मैं एकदम जो है अंदर से एकदम परेशान हो गया, क्योंकि एक तो ये काम करने की मुझे लगता है कि जितना मुझे इल्म है, जितनी मेरी समझ है, अभी तक मैं किसी किताब के बारे में कह नहीं सकता इस तरह से। और ऊपर से जब जगदीप साहब ने कहा कि बहुत बढ़िया किताब है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने में अपनी जो है और बुरी हालत होने वाली है। लेकिन हुआ ये कि जब बात मैं टाल मटोल करने लगा, तो मैंने बात करते करते पूछ लिया कि किसकी किताब है और कौन सी किताब है। तो जगदीप साहब ने आलम साहब का नाम लिया कि भाई अपने मुकेश आलम की किताब है। और आप यकीन करेंगे कि जैसे ही मैंने मुकेश आलम साहब का नाम सुना, सारा जो मंजर है वो एकदम से तब्दील हो गया और मैं खुश हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुकेश आलम साहब की किताब पर बात करने का मौका है। और ये खुशी की वजह ये नहीं है कि मुझ में उसी वक्त कोई इल्म ऐसा आ गया हो या ऐसी कोई समझ पैदा हो गई, सिर्फ ये बात है कि मुकेश आलम साहब हमें अपनी जिंदगी में वो स्पेस देते हैं, वो मोहब्बत देते हैं कि हम उनके या उनकी शायरी या उनकी किताब के बारे में कुछ कह सकें।
एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। कुछ 2-2.5 साल पहले मुकेश आलम साहब के यहाँ मुशायरा था तहजीब द कल्चर ऑफ लव की तरफ से। तो हम लोग वहाँ इनवाइटेड थे, मैं था, साहिल भाई थे, गौतम भाई भी वहाँ थे और भी कई अच्छे शायर। तो प्रोग्राम शाम का था, लेकिन मुकेश आलम साहब ने हमें इनवाइट किया दिन में लंच के लिए, और आलम साहब ने कहा कि साथ में बैठकर लंच करेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो आलम कुछ और ही था। वो ये था कि आलम साहब ने हमें खाने के टेबल पर बिठाया और खुद अपने हाथ से हमें जो है खाना परोसा। अब ये मूवमेंट आप सोच सकते हैं कि मोहब्बत यहाँ पर चरम पे है। अब इसके बाद हम उनके बारे में या उनकी शायरी के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो ये उनकी मोहब्बत है, और उन्होंने हमें जो नवाजा है सिर्फ हम उस वजह से कुछ कह पाएंगे आज। मुकेश आलम कौन है और कहाँ के हैं? सबसे पहले फरहत एहसास साहब, जो खुद इस वक्त शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस किताब के दीवाचे में इस प्रश्न का एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देते हैं। उन्होंने लिखा है, मुकेश आलम कौन है और कहाँ के हैं? इसका जवाब कुछ यूं दिया जा सकता है कि मुकेश आलम इश्क का बंदा और पंजाब की मिट्टी का पुतला है। वो पंजाब जहां 5 नदियों में पानी नहीं, आशिकों के आंसू जारी हैं। जहां दुनिया की 5 में से 2 बड़ी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया। जहां बारिश शाह ने हीर लिखी और बुल्ले शाह ने इंसानी दिलों को मोहब्बत की बारिशों से सींचा, और गुरु नानक की प्रेम बानी ने हिंदुस्तान और सारी दुनिया की भक्ति प्रेम शायरी की सबसे गहरी गूंज पैदा की। आलम साहब पंजाब की इसी मिट्टी और इसी मिट्टी की परंपरा के शायर हैं। अब किताब की ओर रुख करने से पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि मुझ में इतनी सीरत नहीं है कि मैं आलम साहब की किताब पर एक लफ्ज भी कह सकूं, और तनकीद वगैरह रिव्यू करना ये सब तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला कि मैं सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये किताब आपके सामने क्या क्या पेश करती है। कुल मिलाकर मैं आपके और इस किताब के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश में लगा हूं। इश्क तेरी सुल्तानी में, ये मुकेश आलम साहब 82 गजलों और 30 तन्हा शेरों का मजमुआ है। इस किताब के तमाम अशार हजारों तरह के मौज़ूआत और हजारों तरह के जज्बात से लबरेज हैं। एक से एक मानी खेज अशार आपको इस किताब में मिलेंगे। इस किताब की गजलों का रंग बहुत सूफियाना है। तसव्वुफ की इनमें मिसालें नहीं हैं, बल्कि लगभग सभी शायरी तसव्वुफ के इर्द गिर्द ही नजर आती है। आप कहीं से भी कोई भी शेर पढ़ेंगे तो इस शेर की किसी न किसी परत में तसव्वुफ की खुशबू जरूर महसूस होती है। जैसे आपने कुछ अशार अभी आलम साहब के सुने उनकी जुबान से, उनकी किताब की पहली ही गजल के कुछ अशार मैं सुनाता हूँ कि मेरी आंखों में, जो भी आलम साहब की आवाज में आपने सुने हैं, मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं। कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। तो तसव्वुफ का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। या ये शेर है कि एक रास्ता है कि वो सबसे मोहब्बत कर ले, एक रास्ता है कि वो सबसे मोहब्बत कर ले, जो किसी तौर इबादत में नहीं रह सकता। ये क्या कमाल शेर है। किताब में बहुत से शेरों में शुक्राना भी नजर आता है और माशूक के सामने समर्पण के भी भाव नजर आते हैं। कुछ इशार ये हैं, यूं है, अब इस पे कैसा रंज के खासा नहीं दिया, अब इस पे कैसा रंज के खासा नहीं दिया, क्या ये करम भी कम है कि खासा नहीं दिया। या ये शेर है कि जिंदगी अपनी गुजरती है इबादत की तरह, पेश आता है मुझे हर गम मसरत की तरह। कुछ भी हो आलम तेरा दामन ही खाली कब रहा, कुछ भी हो आलम तेरा दामन ही खाली कब रहा,
गुल रिफाकत की तरह, कांटे अदावत की तरह। इस किताब में बहुत से ऐसे शेर हैं जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, जहां आप अपनी जात और उसके तमाम पहलुओं पर गौर करने लगते हैं। तो शेर देखें इस हवाले से कि ये करतब रोशनी ही का है सारा, ये करतब रोशनी ही का है सारा, मेरा अपना कोई साया नहीं है। यह एक शेर है कि एक एक करके मैंने अपने चेहरे गिने जब तौबा तौबा, एक एक करके मैंने अपने चेहरे गिने जब तौबा तौबा, छोटी सी दीवार के ऊपर इतने चेहरों की तस्वीरें। तो इस तरह के शेर हैं। और इस किताब में कई जगह उम्मीद से भरे जिंदगी की नई राह दिखाते हुए भी अशार नजर आते हैं। कांटों में भी हंसने की अदा सीख रहा हूं, कांटों में भी हंसने की अदा सीख रहा हूं, फूलों से थिरकने का मजा सीख रहा हूं, कच्चे हैं अभी मेरी परस्तिश के मानी, तितली हूं पतंगों से दुआ सीख रहा हूं। या ये शार देखें कि पुराने रब्त में इम्कान ताजा ढूंढ लेगी, मोहब्बत राख में जिंदा शरारा ढूंढ लेगी, किसी तपती जमी को जैसे बादल ढूंढता है, किसी तपती जमी को जैसे बादल ढूंढता है, तेरी रहमत कभी मेरा भी कासा ढूंढ लेगी। अब ये शेर देखिए जरा, हम तुझे भूल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, हम तुझे भूल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, सिर्फ इस दिल को मनाने में खफा कर लेंगे, अपनी जंजीर की जीनत को बढ़ाने के लिए, शेर देखें, अपनी जंजीर की जीनत को बढ़ाने के लिए नाचते नाचते घुंघरू की तरह कर लेंगे। अब आप देखें कि क्या कमाल ये शेर है। इसमें उम्मीद है, जुनून की हद तक जाने की इमेजरी को भी बहुत खूबसूरती से निकाला है। इस किताब की गजलों में रवानी तो भरपूर है। आपको जगह जगह हर दूसरे तीसरी गजलों में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई समंदर किसी कश्ती को खुद ब खुद किसी सफर की ओर लिए जा रहा हो। अब ये जो गजल है उसमें से कुछ शेर देखें। सुन दिले नादान सुन, काफी है क्या, सुन दिले नादान सुन, काफी है क्या, उसको पाने ही की धुन काफी है क्या, अपनी एक दुनिया बनानी है मुझे, सोचता हूँ लफ्ज़े खून काफी है क्या। और शेर देखें कि घर से निकला हूँ मैं उसको चूम कर, घर से निकला हूँ मैं उसको चूम कर, है मुकद्दर ये शगुन काफी है क्या। ऐसी ही कितनी रवा गजलें आप इस किताब में देखेंगे। आलम साहब की गजलों में ऐसे ऐसे इस्तियारे हैं, ऐसी ऐसी अलामतें हैं कि जिसके लिए आलम साहब को खास दाद मिलनी चाहिए। कई कई जगह पर रिवायती या क्लासिकी इस्तियारे काम में लाए गए हैं और बहुत जगहों पर एकदम नए दौर के नए लफ्जों को भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कुछ शेर देखें इस हवाले से। ये बड़ा मशहूर शेर है कि चांद ने मुझसे लौट के पूछा कैसी गुजरी कल की रात, चांद ने मुझसे लौट के पूछा कैसी गुजरी कल की रात, तो मैं जमाई लेकर बोला 12 सिगरेट लंबी रात। या ये शेर देखें कि एक दुख सुख के ताकुब में लगा रहता है, एक दुख सुख के ताकुब में लगा रहता है, एक पेंसिल जिसे प्रकार लिए घूमती है। आप देखेंगे किस तरह के इस्तियारे, किस तरह के अलामत, एकदम नई लफ्जियात है। बिकने पे जो आई है तो ऐसे में खरीदो, बिकने पे जो आई है तो ऐसे में खरीदो, फिर चाहे वफा घाटे के सौदे में खरीदो, जब तुझसे मैं बिछड़ा तो ये कहने लगी दुनिया, जब तुझसे मैं बिछड़ा तो ये कहने लगी दुनिया, टूटा हुआ सामान है आधे में खरीदो। कई शेरों में आलम साहब ऐसी ऐसी इमेजरी पैदा करते हैं कि पढ़ने वाला बहुत बार शेर पढ़ नहीं बल्कि देख रहा होता है। एक शेर तो अभी जो पढ़कर गए हैं और वो किस्सा भी आपसे जिक्र किया कि गौतम भाई ने टैटू बनवाया है, तो कितनी प्यारी वो इमेजरी है कि जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, जंग से पहले
फूल से बच्चे याद आए, नेज़े पर एक तितली आकर बैठ गई। कितना प्यारा ये इमेजरी है। अजब सैलाब थे, तस्वीर तेरी आ गई बहकर। अजब सैलाब थे, तस्वीर तेरी आ गई बहकर। जिन्हें मिलना हो आफत के बहाने मिल ही जाता है। या एक शेर है सर का कि हजार समत से तस्वीरें खींचता है वक्त। शेर देखिए क्या इमेजरी है इसमें कि हजार समत से तस्वीरें खींचता है वक्त, हमें पता भी नहीं है किधर को देखना है। या ये शेर देखें कि फूल शजर कोयल जंगल, क्या क्या न सजाया गजलों में। फूल शजर कोयल जंगल, क्या क्या न सजाया गजलों में। और फिर जंगल काट दिए गजलों की किताबों के पीछे। इस शेर में एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी तो है ही, मगर उसके साथ साथ एक दुख और एक बेबसी का भी बयान नजर आता है। इस किताब में कई कई जगह पर रिश्तों की बेबसी और अपनों की बेवफाई का भी पूरे असर के साथ जिक्र किया गया है। जैसे ये शेर है कि मेरे दुश्मन ने मुझे कत्ल किया चूम लिया। मेरे दुश्मन ने मुझे कत्ल किया चूम लिया, काश ऐसा कोई अहबाब में देखा जाता। या ये शेर देखें कि वो मोहब्बत से भरा लहजा, वो वादा क्या हुआ। मेरे सहरा तक जो आता था वो दरिया क्या हुआ। मेरे दोनों ही तरफ बाजार लगने लग गए। मेरे दोनों ही तरफ बाजार लगने लग गए। मैं जमाने के लिए एक बार रास्ता क्या हुआ। या ये शेर देखें कि उसे मनाने में हमने गवा दिया उसको। उसे मनाने में हमने गवा दिया उसको कि शीशा टूट गया धूल साफ करते। इस किताब में बहुत से शेरों में अपनों के लिए दुआएं भी हैं और जिंदगी की राह के नए मुसाफिरों के लिए मशवरे भी हैं। अब इस हवाले से देखें कुछ शेर। बुलंदी से भी नीचे का नजारा याद कर लेना। बुलंदी से भी नीचे का नजारा याद कर लेना। गुरूर आए तो बस टूटा सितारा याद कर लेना। ये शेर है कि हर किसी काम ने रोया न कर जी खोल कर। हर किसी के सामने रोया न कर जी खोल कर। कौन पागल बेचता है मोतियों को तोल कर। या ये एक बहुत प्यारा शेर है कि जो भी हाथ में आए मिट्टी हो जाता है आलम। जो भी हाथ में आए मिट्टी हो जाता है आलम। खाली बात नहीं हम सब कुछ पाकर बोल रहे हैं। इस किताब में जगह जगह मोहब्बत की शिद्दत को भी बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इस वक्त तेरे ध्यान में बेध्यान हूं इतना। इस वक्त तेरे ध्यान में बेध्यान हूं इतना। इस वक्त तेरी दीद भी मंजूर नहीं है। देखिए किस कदर मोहब्बत की शिद्दत है। फूल से खुशबू से पानी से या फिर जाम से रख। फूल से खुशबू से पानी से या फिर जाम से रख। यह मोहब्बत है, मोहब्बत को किसी नाम से रख। या ये शेर देखें कि बांटने से तो कहीं बढ़ के कमाई मैंने। बांटने से तो कहीं बढ़ के कमाई मैंने। कौन कहता है मोहब्बत मेरी बेकार गई। या एक ये शेर है कि ये आंखें दिल तबीयत प्यार नगमे सांस और खुद हम। ये आंखें दिल तबीयत प्यार नगमे सांस और खुद हम। उसे कहना कि सातों ही समंदर याद करते हैं। फलसफियाना अशार भी इस किताब के आहंग को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के फलसफों से लेकर बहुत बारीक अनुभवों से भरे अशार आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। जैसे ये दो शेर हैं कि जितने ऊंचे हो जाओगे और अकेले हो जाओगे। मिट्टी हो मिट्टी से आखिर कितने मैले हो जाओगे। एक शेर है या इसी रंग का कि अपनी लाइल्मी में हर शख्स यही सोचता है। अपनी लाइल्मी में हर शख्स यही सोचता है।
जितनी खिड़की से दिखे बस वही अंबर मेरा। या ये शेर की प्यास की शिद्दत के दरिया गिर गए मुझ में मगर, प्यास की शिद्दत के दरिया गिर गए मुझ में मगर, मैं समंदर हो गया तो और प्यासा, तो मैं समंदर हो गया तो और प्यासा हो गया। ये शेर की बचपन के पीछे दौरे जवानी चला गया, जिसने भी ठहरने की ठानी चला गया। किताब में गजलों के काफिये रदीफ बहुत कसे हुए और बहुत संजीदगी के साथ निभाए गए हैं। गजलों की ज़बान जैसा कि आप सब सुन भी रहे हैं कि बहुत आसान लेकिन साथ में ही बहुत प्रभावशाली भी है। जाने पहचाने मुहावरों से भरे हुए अशार आपको बहुत आसानी से अपने जहन में उतरते हुए नजर आएंगे। किताब के आखिर में कुछ तन्हा शेर भी हैं जो बहुत लुत्फ देते हैं। ये तन्हा शेर किसी आग के अपनी तमाम तपिश लुटा देने के बाद आखिर में बचे हुए शरारे की तरह अपना काम करते हैं। जैसे कुछ शेर देखें। जीते जीते यक बयक मुझको ख्याल आया तेरा, जीते जीते यक बयक मुझको ख्याल आया तेरा, मरते मरते जूं किसी को याद आए जिंदगी। ये शेर है कि तू ऐ मेरे चिराग हवाओं से डर न यूं, तू ऐ मेरे चिराग हवाओं से डर न यूं, जलती कहाँ है आग जहां पर हवा न हो। या ये शेर देखें कि मौत करती रही मुंशी की तरह जिनका हिसाब, मौत करती रही मुंशी की तरह जिनका हिसाब, हमने वो सांसें लुटाई हैं रईसों की तरह। ये किताब जैसा अभी जगदीप सिद्धू साहब ने बताया कि रेख्ता पब्लिकेशन से छपी है। किताब की फॉर्मेटिंग बहुत सहज है, फॉन्ट साइज वगैरह सब एकदम परफेक्ट है। पढ़ते समय किसी भी तरह की उलझन पैदा नहीं होती। कागज का मटमैला सा रंग किताब की खूबसूरती को और बढ़ाता है। किताब के परफेक्ट साइज की वजह से किताब कैरी करने में भी बहुत आसान है। किताब की अगर अहमियत की बात करूं तो ऐसा अक्सर माना जाता है कि इस दौर में, खासकर इस दौर में, कि जहां लोग पढ़ते बहुत कम हैं, ऐसा कहा जाता है कि पढ़ते बहुत कम है लेकिन लिखते बहुत ज्यादा हैं। इस मामले में मेरा एक और तजुर्बा रहा है कि इस दौर में लोग लिखते भी उतना नहीं है लेकिन छापते बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि दर्जनों किताबें छपी पड़ी हैं लोगों की, लेकिन उन किताबों में कहीं कोई मेहनत नजर नहीं आती और ऐसी किताबें सिर्फ अपने लेखक तक ही महदूद रह जाती हैं। लेकिन ऐसे दौर में एक ऐसे शायर का छपना जिसकी शायरी लफ्जों की जमा घटा न होकर एहसास की मिट्टी में रची हुई शायरी हो, जिसने मोहब्बत को सिर्फ एक सब्जेक्ट बनाकर नहीं बल्कि उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो, जिसकी शायरी की ही तरह उसकी अपनी शख्सियत भी अंधेरे में रोशनी का काम करती हो, तो ऐसी किताब न सिर्फ लिखने वालों को राहत दिखाती, नए लिखने वालों को राहत दिखाएगी, बल्कि भूले भटके लेखक भी वहां से होश लेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि अच्छी शायरी की सिर्फ रील्स ही नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि ऐसी किताब खरीद कर सुकून से बैठकर पढ़नी भी चाहिए। सो आप सबसे गुजारिश है कि इस बेहद खूबसूरत, बेहद जरूरी किताब को अपने दिल, अपनी जिंदगी में जगह दीजिए और इस लाजवाब शायर को उसका हक अदा कीजिए। वक्त आखिर में आलम साहब को हमें ये तोहफा देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और ये दिलासा भी देता हूँ कि इस इश्क की सुल्तानी में हम सब भी आपके साथ शरीक रहेंगे। बेहद शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। शुक्रिया दोस्तों, ये जेड़ा एक बुलारे बोल के जान गए जाए बोल के गए ने, एक तनकीदी अमल या अकादमिक आलोचनात्मक अध्ययन नहीं हैगा। ਅਸੀਂ किताब का जश्न मना रहे हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत किताब है। तो इस तो बाद शमशेर साहिल होरां मेरी गुजारिश है कि वो अपनी गल कहें। शमशेर साहिल साडे विच अवतार सिंह पतंग जी ने बहुत बहुत स्वागत है, नवीता कपूर जी है बहुत बहुत स्वागत है, सुरेंद्र गल साहब आए बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलते हैं मैं ज्ञान फिल कर रहे
गुरदेव सिंह गिल जी इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित मंच, मोहतरम सदर महफिल और यहाँ सभी बैठे हुए सभी आलिमों और अदब के जानकारों और शायरी से मोहब्बत रखने वाले तमाम हजरात, सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये एक ऐसा माहौल होता है कि हम शायरी को सुना आपने अभी आलम साहब जब अपने शेर पढ़ रहे थे, लेकिन शेर पे बात करना, उसकी तह में उतरना एक अलग ही बात है, अलग ही मुद्दा है। वो कईयों के लिए बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमें आदत है कि शेर सुनते हैं, अगला शेर, रील वाली जो जिंदगी है, नेक्स्ट। तो कई बार हम किसी चीज को ठहराव की जो कमी होती है हम महसूस करते हैं। तो इस किताब को मैं पहले भी एक दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन जब इस किताब पर बात करने की जो बात हुई, तो जब मैंने इस किताब को दोबारा पढ़ा तो एक अलग नजरिया था। तो उस नजरिए को मैं पेश करूंगा आपके सामने। और आज की इस इल्मी और अदबी नशिस्त में जो आपकी मौजूदगी है, हमारे लिए ना सिर्फ इज्जत का बाइस है, बल्कि इस महफिल की रौनक भी है। तो आप सभी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, तो आप शाह साहब बैठे हुए हैं, आपके सामने मेरा बोलना एक मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये नेमत भी है। तो आज की ये महफिल सिर्फ एक किताब पर चर्चा की रस्म नहीं है, बल्कि हम एक एहसास की दहलीज पर खड़े हुए हैं, एक ऐसी सल्तनत के दरवाजे पर जहां तख्त भी इश्क का है और ताज भी इश्क का है। आज की शाम ये महफिल और आलम साहब की किताब, हजरात, जब हम मुकेश आलम साहब की शायरी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा शायर मिलता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि वो खुद अपनी सल्तनत का सुल्तान है। आलम साहब उन चुनिंदा फनकारों में से हैं जिन्होंने शायरी को सिर्फ आफताब और महताब की रुमानियत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे चाक पर घूमती मिट्टी के मयार तक लेके गए। जब मैंने इस किताब का नाम पहली दफा सुना, इश्क तेरी सुल्तानी में, तो लगा कि शायर ने इश्क को सिर्फ एक एहसास के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि इश्क को एक हाकिम और एक सुल्तान की जो एक हैसियत अदा करती है। तो जब हम आलम साहब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पंजाब के किसी पुराने दरिया के किनारे बैठकर कोई सूफी दास्तां सुना रहा है। उनकी शायरी में वो नफासत है जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। आलम साहब हमारे आसपास की जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनसे बहुत बड़ी बड़ी बातें निकाल लेते हैं, वो जो सीधे दिल तक उतरती है। इश्क तेरी सुल्तानी में महज एक किताब नहीं है, बल्कि एक मुसाफिर का वो सफरनामा है जिसने प्यार, जंग और इंसानी फितरत को बहुत करीब से महसूस किया है। कई जगह ऐसा लगता है कि शायर हमसे नहीं, बल्कि अपने रब से हम कलाम है। पढ़ते पढ़ते लगता है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, शायर अपने रब से बात कर रहा है और हम उस बातचीत के गवाह बन जाते हैं। आइए आज हम मुकेश आलम साहब की किताब इश्क तेरी सुल्तानी में के कुछ पन्नों को पलटते हैं, जहां हर शेर एक नुक्ता है और हर गजल एक मंजिल है और हर शब्द एक रूह का नया लिबास है। जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है कि आधा अपना आधा पराया उन्हें मंजूर नहीं है। तो चलिए आज भी हम उन्हें सारे का सारा सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात एक ऐसे शेर से शुरू करना चाहता हूं जो इस पूरी किताब का मिजाज बयान कर देता है। उन्हीं अशार पे मैं बात करूंगा जो अभी आपने सुने। लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते शेर को सुनना और शेर में उतरना वो दो अलग अलग बातें हैं। तो अब आप देखना, अभी आपने जो शेर सुने और जब शेर जो मैंने पढ़े, तो जब आप किसी शेर के साथ ठहर जाते हैं तो वो शेर आपको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो इस सफर में मेरा साथ दीजिएगा। मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं। अब ये शेर देखिएगा, एक आंख एक छोटा सा दायरा है और उसमें मंजर बैठ जाना, मतलब इश्क कमी को कमी नहीं रहने देता। वो खालीपन जो होता है उसमें विस्तार कर देता है, उसमें एक विस्तार कर देता है। यहां आलम साहब फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को सचमुच चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर
तुम्हारी औकात से बड़ा होकर बैठ जाता है। जहां खाली सफीनों में, तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं। मतलब आप किसी को चाहते हो और वो शख्स आपके अंदर, आपकी जो भी औकात है उससे बड़ा होकर आपके अंदर वो शामिल हो जाता है। अब दूसरा शेर देखिएगा, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं। अब देखिए, दुनिया ताने देती है, पत्थर फेंकती है, लेकिन एक आम आदमी क्या करता है? उन पत्थरों का बदला पत्थर से देता है। लेकिन एक इश्क वाला इंसान क्या करता है? इश्क वाला इंसान नदी बन जाता है। और नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि वो पत्थर जब नदी में गिर जाते हैं तो नदी की रवानी के साथ साथ वो पत्थर मुलायम हो जाते हैं, पत्थर गोल हो जाते हैं। अब देखिएगा क्या क्या प्यारी फिलॉसफी है। कहने का मतलब है, इश्क कभी बदला नहीं लेता है, इश्क बदल देता है। इश्क बदल देता है। जो पत्थरों के साथ नदी ने किया, इश्क ने उनको बदल दिया। तो ये कुछ था। और आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के रिश्तों के लिए बहुत बड़ा सबक है। चाहने वालों, प्यार में थोड़ी आजादी भी लाजिम है, चाहने वालों प्यार में थोड़ी आजादी भी लाजिम है, देखो मेरा फूल ज्यादा देखभाल से टूट गया। अब क्या कमाल का नजरिया है। अक्सर हम जिसे चाहते हैं, हम सबके साथ है पोजेसिवनेस, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे इतना कसकर पकड़ लेते हैं, उस पर इतने बंदिशें लगा देते हैं कि वो दम तोड़ने लगता है। तो आलम साहब कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो देखभाल है, पोजेसिवनेस है, उस जब एक फूल से जैसी कोमल चीज को भी तोड़ सकती है, तो फिर रिश्ते तो क्या ही चीज है। मतलब प्यार उसे बांधना नहीं, उसे खिलने देना है। अगर हम किसी फूल को खिलने देंगे तो वही सच्ची मोहब्बत है। अब मुकेश आलम साहब के 3 अशार और देखिएगा जो आपने अभी भी सुने, मेरे पसंदीदा शार भी हैं कि अपनी समाज के सूखे जंगल में एक शरारा है। अभी हमने शेर सुना। अब जिस तरह से हम शेर में उतरते हैं, ये मेरा अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि शेर के बहुत सारे एंगल होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कम इल्मी से जितना मैं शेर में उतर पाया, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। कोई अगर कुछ गलत तरह से मैं निकल गया हूं तो माफी। कि अपनी समाज के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक। अब कई बार एक आम लिसनर एक सरसरी निगाह से उन चीजों को देखता है और आगे निकल जाता है। लेकिन जब आप इस शेर को ठहर के देखेंगे कि यहां शायर सुनने वाले से ना अपनी समाज, लिसनिंग, सुनने वाले से खास चीज की एक एबिलिटी की वो डिमांड कर रहा है। और वो एबिलिटी क्या है कि जो मैं अपना दुख सुना रहा हूं, ये कोई मेरी कोई सिंपल सी, कोई साधारण सी कहानी नहीं है कि जिसे तुम यूं ही सुन लोगे। अगर तुम्हारे कान सूखे जंगल की तरह बंजर है या संवेदनहीन हो चुके हैं, तो उनमें पहले हमदर्दी की चिंगारी जलाओ। अगर आप उस हमदर्दी की चिंगारी को जला पाते हो, मतलब कहने का मतलब है पानी में अंगारा फेंकना। जिन्होंने इस्तियारा लिया है पानी में अंगारा फेंकना, अब पानी में अंगारा फेंकना एक गजब का मेटाफर है। मतलब जब पानी में जब अंगारा कोई गिरता है तो एक बुझती हुई चीख, एक तड़प पैदा होती है। और शायद कह रहा है कि मेरी टीस को समझने के लिए तुम्हें उस बेचैनी को महसूस करना होगा। तो मेरे अंदर बेचैनी है, अगर मेरी टीस तुम्हें समझनी है तो तुम्हें उसी तरह बेचैन होना होगा। और आग और पानी के मिलन से जो पैदा होती है एक चिंगारी, तब तुम उस तक पहुंच पाओगे। तो ये शेर बहुत ही संवेदनशीलता, बहुत हसास होने की डिमांड करता है। अब अगला शेर देखें, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से। अभी आपने सुना, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से, मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। अब इस शेर में देखो शायर की खुददारी देखो, और उसका हौसला है ना बहुत बुलंदियों पर। वो मतलब आसमान से या किस्मत से वो गिड़गिड़ा नहीं रहा है। खुददारी, फेंक, ये रदीफ ही अपने आप में कह रहा है कि मैं खुददार हूं, फेंक। मतलब वो आसमान को कह रहा है कि चौसर खेल मेरे साथ, मेरे साथ चौसर का गेम खेल। और वो चुनौती दे रहा है कि यह आसमान, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर तूने खेल शुरू किया है तो सबसे पहले अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगा।
क्योंकि जब मैंने खेल शुरू किया, खेल शुरू हो गया है, तो मेरी सबसे कीमती चीज मेरा आंसू है। जब मैंने उसको दांव पर लगा दिया है, तो तू भी अपना तारा यानी उस आसमान की सबसे कीमती चीज वो दांव पर लगा। खेल बराबरी का खुदा मतलब यहां एक इंसान के दुख को कायनात के तारों के बराबर तोला गया है। जो उसके दुख है कायनात के सितारों के बराबर उनको तोला गया है। और ये एक इंसान की डिग्निटी है, इससे बढ़ के डिग्निटी आई थिंक नहीं हो सकती। और ये शेर भी आपने सुना है, करण भाई ने बात की, इससे भी सुनाया कि जंग से पहले फूल से बच्चे याद आए, नेज़े पर एक तितली आकर बैठ गई। क्या है, आगे आगे निकलते हैं। नहीं, ये शेर घंटों बात करने का है। घंटों भी मैं शायद किसी एक समय की मैं लिमिट में बांधूं, गलती है मेरी, लेकिन बात हो सकती है शेर में। अब जो मैंने समझा इस शेर में कि जंग के जो हथियार हैं, जो नेजा हम बोलते हैं, उस पे तितली का बैठना ना एक इमेज है। जैसे आप इमेज आप देख पा रहे हैं कि एक जंग हो रही है, नेजा है, उस पे तितली आके बैठ गई, एक इमेज आपके सामने बन गई है। अब ये शेर एक बहुत बड़ा जो है कंट्रास्ट पैदा करता है। एक तरफ नेजा है जो मौत और जंग की निशानी है, और दूसरी तरफ तितली है जो एक मासूमियत और खूबसूरती को बयां करती है। मतलब कुदरत का एक इशारा है कि नफरत कितनी भी नुकीली क्यों ना हो, आखिर में जीत मासूमियत की होती है। मतलब जंग की तैयारी के बीच में बच्चों की याद आना, दरअसल इंसान के भीतर जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है उसका एक सबूत है। जो थोड़ी बहुत इंसानियत हमारे अंदर बची हुई है, वो अगर वो बची ना होती तो वो थॉट आता ही नहीं। इसका मतलब हम लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है। एक शायर भी वो चीज महसूस करता है और इस तरह से लिखता है, और हम अगर उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं तो हम भी खुशकिस्मत हैं कि हम भी उतने ही हसास हैं जितना शायर है। अब आलम साहब की शायरी में ना सिर्फ एक कोमलता है, बल्कि एक मजबूत इंक्वायरी है, एक हौसला है। अब इस गजल का मतलब उनकी शख्सियत का आईना है। मैं समझता हूं कि दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती। इन्होंने सुनाया कि दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ। अब वो दुश्मनी में एक लेवल की बात करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं उस दर्जे का इंसान हूं जिसके साथ कोई नफरत का रिश्ता रखे हो ही नहीं सकता। नफरत मुझसे हो ही नहीं सकती। अगर कोई रखना चाहे मुझसे नफरत तो रखे, मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं अपना खुद की जात का जिम्मेदार हूं। नफरत रख ही नहीं सकता मुझसे कोई, अगर रखेगा तो मेरी तरफ से उसको वो नफरत वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं मोहब्बत का शख्स हूं, मोहब्बत ही दे पाऊंगा। तो एक शेर और देखना इसमें, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली। हम प्यादों को, इमेज देखो, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। अब शतरंज में देखिए, वजीर और राजा हार सकते हैं, लेकिन एक प्यादा जो आखिरी दम तक लड़ता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। मतलब उसके हारने से जंग डिफाइन नहीं होती है। अब उन्होंने खुद को प्यादा बोला है, तो ये शेर प्यादा बोलने का मतलब क्या है? मतलब मैं समझता हूं मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। मतलब शायर ने कहीं ना कहीं आम लोगों की नुमाइंदगी की है। मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती, कहने का मतलब है जो आम लोग हैं वो अपने हक के लिए लड़ते हुए जान तो दे सकते हैं पर सर नहीं झुकाते। और ये शेर देखिएगा कुछ कि वो करके हर किसी मौसम को राजी छोड़ देते हैं। अब ये इनके बहुत कमाल के शेर हैं। वो करके हर किसी मौसम को राजी छोड़ देते हैं, नए गुल खिल उठे जब अपना माजी छोड़ देते हैं। अब माजी छोड़ देना, नए गुल खिले, अब इन्होंने कहा है कि देखो अपना माजी छोड़ देते हैं। ये शेर बदलाव की और एक सैक्रिफाइस की बात करता है। मतलब हर मौसम को राजी करना, इसका मतलब ये है कि जो दरवेश सिफत लोग होते हैं वो हालातों से कभी शिकायत नहीं करते, चाहे पतझड़ हो या बहार हो, वो हर हाल में खुश रहते हैं और वो वक्त को अपने हक में कर ही लेते हैं।
माजी छोड़ने का एक बड़ा कमाल का थॉट है, क्योंकि लोग अक्सर पुरानी यादों में या कामयाबी में कहीं ना कहीं अटके रहते हैं, लेकिन शायर ये कह रहा है कि असली डेवलपमेंट तब होता है जब आप अपनी नई शुरुआत यानी नए गुल, अपने पुराने पत्ते या कल को छोड़ने का हौसला करते हैं। अपने पुराने पत्ते जो इंसान या अपना कल छोड़ने का जो हिम्मत करता है, जो हौसला करता है, वही नए गुलों का दावेदार होता है। आने वाले जो दिन है उसकी खुशकिस्मती है, उसका दावेदार होता है। तो ये शेर मैं समझता हूँ डिटैचमेंट का भी बहुत खूबसूरत एक तो इसी सिलसिले का एक शेर है, वो एक नुक्ता जो लफ्जों में बयां होता नहीं आखिर। आपने अभी सुना, वो एक नुक्ता जो लफ्जों में बयां होता नहीं आखिर, उसे दीवाने पढ़ लेते हैं, काजी छोड़ देते हैं। अब यहाँ काजी कौन है? दीवाने पढ़ लेते हैं और काजी छोड़ देते हैं, या काजी कौन है? काजी का मतलब एक ऐसा ये सिंबलिक फॉर्म है कि बहुत सारे हम लोग ऐसे शख्स जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ ली हैं, पढ़ आलिम फाजिल हो यो कदुआ आपने पढ़ा नहीं, तो बुल्ले शाह का ये कोट था। तो ये सारा खेल जो है इल्म का है, नॉलेज का है, लेकिन मैं कहता हूं ये नॉलेज और इश्क के बीच का एक कंट्रास्ट है। अब यहाँ पे जो जानते हैं सूफीवाद में जो नुक्ता होता है उसमें खुदा की हकीकत को कहते हैं कि जो किताबों में नहीं मिलती। दीवाना और काजी का कंट्रास्ट देखिए। काजी होता है जो लकीर का फकीर होता है, वो केवल जो उसकी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या ग्रामर है उनको देखता है, लेकिन जो दीवाने होते हैं शब्दों के पीछे के जो जज्बात हैं, मतलब आप कुछ नहीं बात कर रहे हैं लेकिन मोहब्बत में है, वहां कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी खामोशियां बात करती है, उसको नुक्ता कहा है। नुक्ते को पढ़ने के लिए किसी ग्रामर की रूल की जरूरत नहीं होती, किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। नुक्ता लगता है ये कुछ नहीं है, जाने दे, लेकिन मोहब्बत वाला जो शख्स होगा उस नुक्ते की कीमत, उस खामोशी की कीमत की वो समझेगा। तो मैं यही है कि वो लॉजिक नहीं पकड़ लेते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जहां दिमाग की जो सरहद है वो खत्म होती है, वहां से दिल का रास्ता शुरू हो जाता है। ये शेर इंटेलेक्चुअल ईगो है, उस पर चोट करता है। अब एक अलग रंग की गजल देखिए। चांद ने मुझसे लौट के पूछा कैसी गुजरी कल की रात, तो मैं जमाई लेकर बोला 12 सिगरेट लंबी रात। अब इसमें आपने देखा होगा 12 सिगरेट लंबी रात, बुर्का पहने रात, इसमें एक अलग सी चीजें आई है। मतलब जो शायर है इन्होंने जो हमारे पारंपरिक जो बिंब है, ये रुमानियत है, उनसे हटकर के कमाल के क्राफ्ट के साथ बुना है। आलम साहब की इस गजल की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका आधुनिक मुहावरा है, जब वो कहते हैं 12 सिगरेट लंबी रात, तो वो समय को घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि एक शहरी इंसान की जो तन्हाई है, उसकी जो बेचैनी है, उनसे माफ करते हैं। ये सिगरेट का जो इस्तियारा लिया है उन सुलगती हुई खामोशी को बयान करता है जिसे सिर्फ एक तन्हा इंसान ही समझ सकता है। ये देखिएगा कि जो इन्होंने मैं एक शेर सुनाता हूं आपको कि रात ठहाके मार रही थी अंधेरों को साथ लिए, रात ठहाके मार रही थी अंधेरों को साथ लिए, इतने में एक जुगनू आया तेरी ऐसी तैसी रात। अबे देखो स्वैग देखो, तेरी ऐसी तैसी रात। अब ये इस तरह से लेना, हम कहते हैं कि यार ये जदीद शायरी है, ये आजकल के लड़के करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये तेरी ऐसी तैसी रात को बढ़ता है ना, मजा ही आ गया। क्या बात, और बहुत कमाल का। मतलब आलम साहब की सोच में एक अजीब सा एक विट है, देखिएगा, और जिंदा दिली भी है। रात जब ठहाके मारकर अंधेरे पर रोब जमाती है तो एक नन्हे से जुगनू के जरिए उसका गुरूर तोड़ देती है। तेरी ऐसी तैसी रात ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, बल्कि दमनकारी अंधेरे के खिलाफ एक आम आदमी का रेजिस्टेंस है। ये बताता है कि रोशनी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो अंधेरे की तानाशाही को चुनौती देने की हिम्मत रखती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तेरी ऐसी तैसी रात कहने भी हो सकता था कि मैं तुम्हें सीधे चुनौती दे रहा हूं, ललकार रहा। और आखिरी में अच्छी इंटरप्रिटेशन। साथियों, मुकेश आलम साहब की शायरी हमें इंसान बने रहने की ताकीद करती है। वो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी तितली, एक छोटा सा फूल या एक हल्की सी लहर हमें जिंदगी के बड़े सबक दे सकती है। उनकी शायरी का सबसे जादुई पहलू उनके मेटाफर की नजाकत है और एक नयापन। वो पुराने मेटाफर के बोझ तले दबे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पेंसिल और प्रकार की, और जैसे 12 सिगरेट लंबी रात है, जैसे खुदरंग जो बिंब हैं उनसे उन्होंने नब्ज पकड़ी। और मैं मुकेश आलम साहब को आधुनिक उर्दू अदब के वो दस्तखत कहूंगा जिन्होंने शायरी को महज मनोरंजन से निकालकर रूह की इबादत बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर साहिब। शमशेर साहिब ने बड़े दिलचस्प तरीके नाल अपनी तनकीद की थी और नहीं तो अकादमिक लेवल ते ਅਸੀਂ देखते हैं कि सानू बोरियत महसूस होने लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਪਾਠ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿੱਕੀ ਪਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਾਨ ਸੈਣੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹਮਦਿਲ ਦੋਸਤ ਗੋਪਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਤੋਂ ਲੁਕੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੇ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪਿੰਗਲ ਅਤੇ ਅਰੂਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵਿਧਾ ਬਣ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਗਜ਼ਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अजीम शायर बशीर बदर ने कहा, गजलें अब तक शराब पीती थी, गजलें अब तक शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं हम। गजल उस्ताद सुलखन सरहदी का कहना है, गजलां हुण जुल्म संग भिड़ना है, गजलां हुण जुल्म संग भिड़ना है, ताही तामत छिका रहे हैं असीं। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੂਕ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਗਿਲ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਸਤਾਖਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗਜ਼ਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧਰੂਹ ਤਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਨ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਅਜੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ। इस दियां कुछ गजलों के शेयरों का रंग देखो। अपने किरदार को कुछ ऐसा बनाओ आलम, अपने किरदार को कुछ ऐसा बनाओ आलम, आप इशारा करें और लोग भरोसा करें। जब तेरी नजर में नहीं तो फिर तेरा आलम,
जब तेरी नजर में नहीं तो फिर तेरा आलम मशहूर भी हो जाए तो मशहूर नहीं है। जुड़ते जाते हैं जे मिस्रों के सफीने आलम, जुड़ते जाते हैं जे मिस्रों के सफीने आलम, तेरी गजलों में से दरिया की रवानी सुनकर। टूटना क्या है जरा शीशों से भी पूछना था, टूटना क्या है जरा शीशों से भी पूछना था, क्यों चले आए हो पत्थर को कुछ पूछकर। मुक्ति गल आलमनिया गजलों में सूरज दे सत्ते रंग हैं जो मनुखी जीवन दे दुखा सुखा तो लैके जिंदगी दे कौड़े मिठे वरतारियां नूं अपने कलावे विच लैंदियां नजरी पैंदियां। आखिर विच मैं मुकेश आलम जी नूं गजल जगत नूं अपना नवेकला गजल संग्रह इश्क तेरी सुल्तानी में देख दे दिलों बधाई दिंदी हां। इस कंप्लीमेंट नाल अपनी गल खत्म करदी होई, आलम है चंबे दी माला, आलम है चंबे दी माला, दिलां विच रहे महकदा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हरवंश कौर गिल जी। डॉक्टर हरवंश कौर गिल डिप्टी डायरेक्टर रहे ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और शायरी भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़िया महत्वपूर्ण गल्लां कीतियां अरूज पिंगल दे जाविये तो भी। आलम साहब की इस तो पहला 2 किताबां छप चुकियां ने, शन कंगना पंजाबी विच ते उर्दू की किताब सी वो चिरागों के हवाले से। मैं भी उस मौजूद सीगा 2015 ਦੀ 13 ਦੀ 2013 उत्तम रेस्टोरेंट च इस दा यानी कि लोकार्पण होया सीगा। बहुत कमाल दी किताब सी ना दी। ते इस तो बाद प्रधानगी भाषण लई मैं गुजारिश करांगा साडे के शायर एस नसीम होरा माछीवाड़े दी धरती तो एस नसीम। आदरयोग मैडम गिल साहब, उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती जनाब खुशबीर सिंह शाद साहब, विद्वानों, शायरों, चिंतकों, दोस्तों, स्वपन फाउंडेशन ते पंजाब कला परिषद के संयोग नाल अज का इन्ना संजीदा समागम जो रचाया गया है, इसलिए मैं सारे दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता, खास तौर पर जगदीप सिद्धू और इन्हों के होर साथी जिन्होंने बड़ी मेहनत के नाल अज का समागम रचाया, उन्होंने मैं मुबारकबाद पेश करता। दोस्तों, मुकेश आलम की शायरी का जितों तक तवल्लुक है, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम मीर तकी मीर साहब, जिन्होंने खुदाए सुखन का दर्जा हासिल है। उन्होंने बारे बहुत सारे शायरा ने बहुत कुछ बहुत बार लिखा कि कभी ज़ौक़ ने कहा कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गज़ल में मारा। मीर साहब बारे एक कहानी प्रचलित है कि जदों उन्होंने शायरी वाल रुख किया तो उन्होंने वालिद साहब ने उन्हें ताकीद की थी कि मीर अगर शायरी करनी है तो एक नुक्ता याद रखना, इश्क कर, इश्क कर, इश्क कर। और उस नुक्ते नूं मीर साहब ने जिस तरह पकड़िया और वो खुदाए सुखन हो गए, और उस तो लैके जदीद उर्दू शायरी तक वो रवायत, इश्क की रवायत जिहड़ी है वो चलदियां चलदियां मुकेश आलम तक पहुंची। और मुकेश आलम दी शायरी इश्क तेरी सुल्तानी में इस दे विच भी उन्होंने नुक्ते नूं पकड़ के रखिया है, चाहे वो इश्क हकीकी होया या इश्क मजाजी होया, अपने महबूब का इश्क या गमे जाना तो लैके गमे दौरां तक। तो इश्क ही एक नुक्ता है जिसमें पकड़िया हुआ
ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ और बहुत महबूब शायर है और मैं उन्होंने इस नवी किताब की आमद के उत्ते बहुत मुबारकबाद पेश करदा और एक बार फिर सपन फाउंडेशन, पंजाब कला परिषद और जगदीप सिद्धू बाकी सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करदा। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एस नसीम साहब। साडे विच माछीवाड़े तो बलजिंदर बहुत प्यारा शायर है साडा, वो आया निरंजन सुखम आया, ये बड़े प्यारे शायर ने, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। सनी कबीर आए ने, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। इस तो बाद मैं धन्नवाद लई सुखविंदर साडे मैंबर ने, कार्यकारी मैंबर ने, इन्हां नूं कहांगा। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते अज दी महफिल दे शिकार इस प्यारे शायर मुकेश आलम जी ते सारियां मायनाज हस्तियां जो तुसी अज सपन फाउंडेशन के सदे दे इस महफिल का शिंगार बने हो। सो अज बड़ा आनंद आया। मुकेश आलम जी नूं पहली बार मिले आ ते पहली बार मिल के रज आ गया, जिवें कहंदे हुंदे आ भी घड़े वांगू भर गए आ इन्हां दियां गज़लां दे नाल, इन्हां दे शेरां दे नाल, ते हुण कनैक्टिविटी बन गई है ते लगातार आनंद माणदे रहांगे असीं भी, तुसीं भी इस इंटरनेट के युग के दौरान। सो इस महफिल का शिंगार बन लई ते सपन फाउंडेशन के इस समागम नूं भरपूर बनाउण लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। आस करदे हां कि तुसीं हर प्रोग्राम दे विच इस तरह ही अपनी शमूलीयत दे के हर प्रोग्राम नूं तुसीं इदां ही वधिया बनाओगे ते नवें नवें शायरां नूं, पुराने शायरां नूं इसे तरीके दे नाल हौसला अफजाई करते रहोगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सारिआं दा।